چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج انشاءاللہ سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا. حج کی 3 اقسام ہیں. حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. حج افراد, حج قران, حج تمتع. یہ 3 قسم کی حج ہے. تینوں کی تفصیلات الگ الگ ہے, کیونکہ پاک و ہند یعنی ہندوستان پاکستان سے جانے والے زیادہ تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. اس لیے ہم حج تمتع ہی پر غور کریں گے, اسی کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. شارٹ ویڈیو بنائیں, مین نکات پہ بات کریں گے. اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو سننے والے کو لگے گا یار یہ تو نہیں بولا, وہ تو نہیں بولا. مین بیسک باتوں کو پکڑیں گے. مین بیسک باتیں پکڑ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حج کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ساتھ اور بھی جڑی ہوئی باتیں تو وقت کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی سن لیں گے. لیکن جتنا یہ ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے تقریباً 90 بلکہ 99% یہ حج ہے, ٹھیک ہے. کون سا حج سیکھیں گے؟ حج تمتع. حج افراد کے اندر کیا ہے؟ عمرہ نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. حج قران کے اندر عمرہ ہے, ٹھیک ہے نا. مگر حج افراد اور حج قران پر ہم کلام نہیں کریں گے, حج تمتع پہ کریں گے, تیسری قسم پہ کریں گے. پاک و ہند سے جانے والے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع ہی کرتے. اب وہ ہوگا کیسے؟ حج تمتع کا آسان طریقہ کیا ہے کہ حج تمتع کرنے والا پہلے مکے پہنچ کے عمرہ کرے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ گھر سے عام طور پہ ہم کراچی میں تو کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ کراچی سے وہ گھر سے عام طور پہ لوگ گھر سے احرام باندھتے ہیں, ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر سے احرام باندھ کر کراچی سے کراچی ایئرپورٹ پہنچے گا. پلین میں بیٹھنے کے بعد میقات آنے سے پہلے ایئر لائن اعلان کرتی ہے کہ میقات آنے والا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ عمرے کی نیت کر لے گا. حج تمتع سے پہلے کیا ہوگا؟ عمرہ ہوگا. عمرے کی نیت کرنے کے بعد احرام تو بندھا ہوا اس کا, عمرے کی نیت کرے گا, احرام بندھا ہوا ہے, اور تلبیہ پڑھے گا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. ایک بار بلند آواز سے پڑھے گا, 3 بار بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے, مگر ایک بار, ٹھیک ہے نا. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. پلین کے اندر کوئی بھی فیل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اب وہ احرام باندھ کر کراچی سے کہاں پہنچا؟ جدہ. میقات آنے سے پہلے اس نے نیت کر لی. اب جدے پہنچ کر اب وہ جدہ سے کہاں جائے گا؟ مکے. بائی روڈ جدہ سے مکہ تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے, گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر مکے پہنچ جائے گا. مکے پہنچ کے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ طواف کرے گا. سب سے پہلے, یہ عمرے کا بتا رہا ہوں, حج آگے جا کر آئے گا. سب سے پہلے مکے پہنچ کر کیا کرے گا؟ طواف کرے گا. طواف کیا ہے؟ 7 چکر کا نام طواف ہے. 7 چکر کا نام طواف ہے. طواف کہاں سے شروع ہوگا؟ حجرہ اسود سے شروع ہوگا, اور پہلا چکر بھی حجرہ اسود پر پورا ہوگا. ابھی تو نیا جو انہوں نے کیا وہ چاروں طرف چبوترا بنا دیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک ہی طرف چبوترا تھا. اس چبوترے کو کیا کہتے تھے؟ حتیم. حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرے گا, کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. حتیم کیا ہے؟ کعبے کا حصہ. وہاں ایک سونے کا پرنارا لگا ہوا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزاب رحمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مزاب رحمت کرتے. اب حجرہ اسود سے کیا کرے گا؟ طواف کرنا شروع کرے گا. پہلا چکر اس کا کام پورا ہوگا وہیں پہ جہاں سے شروع کیا تھا, حتیم میں سے نہیں گزرے گا. پھر 7 چکر کا نام کیا ہے؟ طواف. طواف کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ نماز طواف پڑھے گا. 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا. نماز طواف پڑھنے کے بعد سامنے ہی لکھا ہوگا کوئے باب صفا. کیا لکھا ہوگا؟ باب صفا. یعنی صفا پہ جا کے وہاں سے صحیح شروع کرے گا. صفا مروہ سے صحیح کرے گا. صفا مروہ پہنچے گا. صحیح کہاں سے اسٹارٹ ہوگی؟ صفا سے. صفا سے اسٹارٹ کرے گا مروہ. پہلا چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پہ. آخری چکر بھی مروہ پہ. کہاں سے اسٹارٹ لے گا؟ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. اسی طرح اس کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد حلق یا تقصیر کرے گا. یعنی کہ یا تو حلق کہتے ہیں گنجا ہونے کو, تقصیر کیا کہتے ہیں؟ روپے میں 4 آنے. روپے میں یعنی 25%, 1/4 بال کا کم کرنا. لیکن حلق کرنا کیا ہے؟ افضل ہے. زیادہ ثواب کس پہ فرمایا؟ حلق پر. حلق یا تقصیر, اس کو یوں کہہ لیں, آپشن اے یا آپشن بی, دونوں میں سے جو بھی کرے گا صحیح ہے. اب کیا ہوا؟ عمرہ مکمل ہو گیا. اب عمرہ مکمل ہو گیا. اب حاجی جو ہے, عمرے کو عام طور پہ لوگ چھوٹا حج بھی کہتے ہیں, تو حاجی جو ہے یا حج کرنے والا جو ہے اب مکے میں اسٹے کرے گا. مکے میں اسٹے کرے گا, نفلی طواف کرے گا, اور عمرے کرنا چاہے تو اور عمرے کرے گا, اور عمرہ کرنا ہوگا تو حدود حرم سے باہر نکلے گا, ٹھیک ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ انتظار کرے گا 8 تاریخ کا, 8 ذی الحجہ کا. اصل میں جو حج کے دن شروع ہوتے کہاں سے شروع ہوتے؟ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے. 8 ذی الحج کو کیا کرے گا؟
8 ज़िलहज को मक्के से हज का एहराम बांध कर मीना जाएगा। क्या करेगा? 8 ज़िलहज को मक्के में। अब इसके अंदर तफसीलात बहुत है, अगर सारी तफसील बयान करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आसान करके भी जो लिखा है, और भी तरीके, दोनों तरीके आ जाएंगे। 8 ज़िलहज को मक्के से हज का एहराम बांधे, नियत ना करे, अभी नियत ना करे, क्या करे? खाना काबा का तवाफ़ करे, खाना काबा का एक नफली तवाफ़ करे रमल के साथ, इस्तिबात और रमल के साथ एक तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा की सही करे। सही करने के बाद अब एहराम की नियत करे, अब एहराम की नियत करे और वही तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब मक्के से कहाँ जाएगा? मक्के से मीना जाएगा। मक्के से मीना का कितना रास्ता है? तकरीबन 5 किलो, तकरीबन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मक्के से मीना जाएगा, 5 नमाजें मीना में पढ़ेगा। मीना में जाना क्या है? सुन्नत है, मीना में जाना सुन्नत है और सुन्नत अजीमा, इसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर किसी वजह से मीना में नहीं जा सका 8 ज़िलहज को और 9 को अरफात में गया, उसका हज हो जाएगा। हज हो जाएगा कि सुन्नत के छूट जाने से हज पे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई वाजिब तरक हो गया तो वाजिब के अहकाम अलग है, उस पर दम देना पड़ता है। 2-1 वाजिब ऐसे हैं जिसके ऊपर दम भी नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। अगर सुन्नत छूट गई हज हो जाएगा, वाजिब छूटा तो वाजिब के अहकाम अलग है, ठीक है। अभी हम उस पर कलाम नहीं करें। मक्के से मीना आएगा, मीना में कितनी नमाजें पढ़ेगा? 5, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज पढ़ेगा। अब वो 8 को मीना, मक्के से कहाँ पहुंचा था? मीना में। रात कहाँ हो गई? मीना में। फजर के बाद 9 ज़िलहज्जा को, फजर के बाद 9 ज़िलहज्जा को मैदान अरफात पहुंचेगा, मैदान अरफात पहुंचेगा। मैदान अरफात मीना से तकरीबन 11 किलोमीटर है। मैदान अरफात मीना से तकरीबन 11 किलोमीटर है। मैदान अरफात में ज़ोहर व असर पड़ेगा। इसमें सारे ऑप्शन है, चाहे तो मिला के पढ़ ले या अलग अलग पढ़ ले, वही बात है, डिटेल नहीं बयान कर रहा हूँ, मेन बेसिक चीज़ें बयान कर रहा हूँ। मैदान अरफात में असर व ज़ोहर पड़ेगा। अब इंतज़ार करने बैठ जाएगा वकूफ़े अरफा का, वकूफ़े अरफा का। क्या करेगा? वकूफ़े अरफा के इंतज़ार में, यानी आफ्ताब सूरज डूबने का इंतज़ार करेगा, आफ्ताब सूरज गुरूब होने का इंतज़ार करेगा। सूरज गुरूब होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के बाद, अंधेरा होने तक मैदान अरफात में ठहरना ये फ़र्ज़ है। हज का फ़र्ज़ आज़म, सबसे बड़ा जो उसका रुकून है वो वकूफ़े अरफा ही है। अगर जिसको वकूफ़े अरफा नहीं मिला उसका हज नहीं होगा, उसका हज, अगर किसी वजह से किसी का वकूफ़े अरफा नहीं हुआ, वकूफ़े अरफा हुआ ही नहीं, अब उसका हज का एहराम उम्रे में बदल जाएगा, हज का एहराम उम्रे में बदल जाएगा। वो जाएगा, मक्के जाएगा, तवाफ़ करेगा, सफ़ा मरवा की सही करेगा, हलक करेगा और अगले साल जाकर हज की कज़ा करेगा, ठीक है ना। ये मैंने एहतियातन बात बता दिया। अब ये एक नोट बता रहा हूँ, मेन बात। 10 ज़िलहज्जा की मगरिब से लेकर 10 ज़िलहज्जा की तुलुए फजर तक वकूफ़े अरफा का वक्त है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट। 10 ज़िलहज्जा की मगरिब से लेकर 10 ज़िलहज्जा की तुलुए फजर तक वकूफ़े अरफा का वक्त है। अब 10 ज़िलहज्जा को मगरिब होने के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद, अरफात से कहाँ जाएगा? मुज़दलिफ़ा। अरफात से मुज़दलिफ़ा जाएगा, मगरिब व इशा मिलाकर मुज़दलिफ़ा में जाके पड़ेगा। इशा के वक्त में मगरिब और इशा मिलाकर पड़ेगा, रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेगा, रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेगा और तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक, तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक मुज़दलिफ़ा में वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करेगा। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा क्या है? हज का वाजिब है। देखिए, हज के अंदर 3-4 बातें जो हैं लाजमी है। हज हो या उम्रा हो, बगैर एहराम के नहीं होता, बगैर एहराम के ना हज है ना उम्रा है। हज का फ़र्ज़ आज़म क्या है? वकूफ़े अरफा। इसी तरह तवाफ़ ज़ियारत क्या है? फ़र्ज़। अगर ये भी नहीं हुआ और बगैर एहराम के तो चंद बातें, इसमें तरतीब भी है, पहले एहराम है, फिर वकूफ़े अरफा है, फिर तवाफ़ ज़ियारा है, इस तरह की तरतीब है, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखेंगे। वापस आएंगे, रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे और तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक, ये भी काफ़ी टाइम है, तुलुए आफ्ताब से रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे और तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक मुज़दलिफ़ा में वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करेंगे, ठीक है। फिर 10 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा से वापस मीना आएंगे। वकूफ़े अरफा करने के बाद सुबह, सही है ना, तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले तक वकूफ़ करेंगे और मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करने के बाद सुबह के वक्त में 10 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा से कहाँ आएंगे? मीना आएंगे। मीना आकर बड़े शैतान को जमरातुल उक़बा पर कंकरियाँ मारेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर हलक या तकसीर करेंगे। इसको दोबारा समझे।
जब मुज़दलिफ़ा से मीना आएंगे तो क्या करेंगे, जमरातुल उक़बा पर पहले कंकरियाँ मारेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर हलक या तकसीर करेंगे। ये तरतीब भी लाजमी है, पहले कुर्बानी है, बाद में हलक है या तकसीर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 10 ज़िलहज्जा को हलक या तकसीर कराने के बाद, 10 ज़िलहज्जा को हलक या तकसीर करने के बाद मक्के से आकर, 10 ज़िलहज्जा को हलक या तकसीर करने के बाद मीना से कहाँ जाएंगे, मक्के जाएंगे। मक्के में जाके क्या करेंगे, तवाफ़ ज़ियारा और सही करेंगे। अगर शुरू में एहराम बांधते वक्त सही कर ली तो अब यहाँ सही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू में जब हज का एहराम बांधा था, अगर सही तवाफ़ के साथ सही नहीं करी तो अब यहाँ सही करेगा। तो बहरहाल 10 ज़िलहज्जा को हलक या तकसीर कराने के बाद मीना से आएगा मक्के। मक्के में क्या करेगा, तवाफ़ ज़ियारा और सही करेगा। अगर पहले सही कर चुका तो अब फिर नहीं करेगा। फिर तवाफ़ ज़ियारा और सही करने के बाद वापस कहाँ जाएगा, मीना में आएगा। मीना में 11, 12, 13 तीनों दिन जमरात पर कंकियाँ मारेगा। पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े शैतान को। तीनों शैतान को तरतीबवार कंकरियाँ मारेगा। इसका ये हज मुकम्मल हो चुका है। हज तो इसका खैर एहराम तो वहीं हो गया था जहाँ इसने कुर्बानी के बाद हलक किया, वहाँ हज एहराम तो वहीं खुल गया था। अब इसका हज वहाँ मुकम्मल हो चुका है जब इसने तवाफ़ ज़ियारा करा। मगर बातें और भी बाकी हैं, जो बातें वाजिब होती हैं उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो जमरात पे कंकियाँ मक्का आ जाए तो मक्के अब क्या करेगा, फिर वापस मीना आए, 11, 12, 13 तीनों दिन जमरात पर कंकरियाँ मारे, मक्के आ जाए। और जब भी हाजी मक्का छोड़ेगा क्या करेगा, तवाफ़ वदा करेगा। हाजी जब भी मक्का छोड़ेगा क्या करेगा,